Good morning, students. Now we are starting chapter number 8. The name of this chapter is Our Government. Our government means हमारी सरकार, हमारा प्रशासन. आज हम इस चैप्टर में हमारे भारत देश की सरकार के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे गवर्नमेंट में क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है और किस तरह से हमारी गवर्नमेंट चलती है. Welcome to the chapter Government of India. Children, did you know that India is the world's largest democracy? Our government is run by the people of India. We go by the slogan of democracy, we the people, for the people, and by the people. So, what is government? Can you define government? The group of people with the authority to govern a country or a state. A particular ministry in the office is called a government. So, what does the government do? It lays down rules and makes laws. It ensures we live according to the laws and follow rules. How does the government function? The government functions at three levels: 1, 2, and 3. At the level 1, we have local government. At level 2, we have the state government. And at the topmost, we have the central government. Level 1, we have the local government. So, what does the local government do? The local government is for the governance of the immediate community. How does it function? The urban, the rural. The urban community is taken care of by the municipal councils and municipal corporations. The rural again by 3 tier, that is Gram Panchayat, village level, Anchalik Panchayat, the block level, and the Jilla Parishad, which is the district level. At level 2, we have the state government. As you know, India is divided into a number of states. We have the state government at different state capitals for the governance of these states. The head of these states is the governor of each state, and we have the chief minister and the council of ministers to govern the different states of our country. Level 3, that is the highest level, we have the central or the union government. The union government functions from the Parliament House situated at the capital of the country, which is New Delhi. So, what is the relationship between the center and the state governments? The Constitution has laid down the responsibility of the center and the state governments. The central government takes care of the defense, the relationship with other countries, and other aids to the states. The state government takes care of education, maintenance of law and order, and others. The union or the central government functions from the Parliament House. It is the main law-making body of the nation. The president is at the top with his office at the Rashtrapati Bhavan in New Delhi. We have the Rajya Sabha, which is the upper house, and then the Lok Sabha, which is the lower house of the parliament. Lok Sabha. Lok Sabha is also the lower house or the house of people. The maximum number of seats at Lok Sabha is 552, out of which 530 are the representatives from different states, 20 from the union territories, and 2 from the Anglo-Indian representations. As you know, India has different political parties which contest in the elections from the different states of our country through direct elections. Children, remember, the members of the Lok Sabha are directly elected through the general elections. Members are elected for a period of 5 years. If you need to contest in the elections, you need to have a minimum age of 25 years.
And if you need to cast your vote in the elections, you need to be of 18 years and above. Rajya Sabha. The upper house, the Council of States or the permanent house is also called as the Rajya Sabha, with the total number of seats as 250, out of which 238 are the elected members from the different states and 12 are nominated by the President. Remember children, this is called an indirect election. These are the elected members of state legislatures and the period of office is for 6 years. 1/3 of these members retire every second year or every 2 years. The President. Who is the most favorite president of our country? Yes, Dr. APJ Abdul Kalam. Do you know who is the president? Dr. Pranab Mukherjee. Remember, they function from the Rashtrapati Bhavan at New Delhi. Remember children, the president is the head of the country and the period of office is for 5 years. The members who can elect the president are the members of Lok Sabha, the members of Rajya Sabha and the state legislative assemblies. The Prime Minister and Council of Ministers. As you know, India goes into general elections every 5 years. Different political parties across the country contest in these elections conducted by the Election Commission of India. The leader of the party which gets the maximum number of votes is being invited by the President to form the government and he becomes the Prime Minister of our country and his office is for a period of 5 years. So who is the current Prime Minister? Narendra Modi, and this is his group of Council of Ministers who will assist him for the smooth functioning of his government. The courts. If any citizen of India feels that his or her fundamental rights are being denied, he or she can approach the courts for justice. There are district courts at the district level. The highest court in a state is the High Court. The Supreme Court is at New Delhi, which is the highest court of the country. Its decision on any matter is final. This completes this chapter. Thank you. Good morning. So, first of all, we will see. You can see there are two persons talking to each other. Mrs. Mani. You can see Mrs. Mani is this and this is Rohan. Rohan is Mrs. Mani's son. Understand children? Or we can say Rohan's mother is Mrs. Mani. Mrs. Mani is Rohan's mother. Mrs. Mani. Watching Rohan pull out old newspapers from the cupboard where she had neatly stacked them for sale. मिसेस मानी क्या वॉच कर रही हैं कि रोहन क्या कर रहा है, कुछ न्यूज़पेपर खींच रहा है जो कि उनने अच्छे से जमा के रखा था बेचने के लिए। अचानक वो पूछती हैं व्हाट आर यू डूइंग रोहन, यू हैव मेड सच अ मेस। तुम क्या कर रहे हो, क्या तुमने सब मिला दिए वहाँ पर। रोहन सेज सॉरी माँ बट आई नीड द न्यूज़पेपर फॉर द लास्ट 1 वीक। सॉरी माँ, मैं पिछले हफ्ते का मुझको न्यूज़पेपर ज़रूरत है। आई हैव टू रीड द न्यूज़ इन स्कूल टुमारो। मुझे कल न्यूज़ पढ़ना है। न्यूज़ कैसे पढ़ना है स्कूल में, असेंबली में बच्चे न्यूज़ पढ़ते हैं।
माँ आई ऑल्सो हैव टू डू अ प्रोजेक्ट ऑन द गवर्नमेंट, विल यू हेल्प मी? और मुझे वो प्रोजेक्ट भी बनाना है गवर्नमेंट का, तो वो मेरे लिए हेल्प करेगा। मिसिज मानी विथ स्माइल, ऑफ कोर्स। स्माइल करके, हंस के, मुस्कुरा के क्या बोलती हैं? ऑफ कोर्स। आई विल हेल्प यू, वॉट आर यू सपोज टू टॉक अबाउट? मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, तुम किस बारे में पूछना चाहते हो? रोहन, वी हैव टू स्पीक आउट द मेन लोकल एंड नेशनल न्यूज़ फॉर द वीक। कुड यू जस्ट रीड आउट द हेडलाइंस, आई विल राइट देम डाउन क्विकली। वो मम्मी से क्या बोल रहा है, अपने मदर से क्या बोल रहा है कि मुझे कल लोकल न्यूज़ और नेशनल न्यूज़ के बारे में असेंबली में उसको न्यूज़ पढ़ना है। लोकल यानी हमारे आसपास चारों तरफ, जैसे हमारे शहर, गांव, शहर, आसपास मोहल्ले में या जिस एरिया में हम रहते हैं उसके बारे में न्यूज़, या डिस्ट्रिक्ट के लेवल की न्यूज़, और जो नेशनल लेवल है पूरे ऑल इंडिया के लेवल की न्यूज़ के बारे में उसको पढ़ना था। वो पूछ रहा है आप क्या मुझे रीड करके बता देंगे हेडलाइंस, तो मैं उसको तुरंत जल्दी जल्दी लिख लूँगा। मिसिज मानी, ओके लेट मी सी। क्या बोलती हैं? मुझे देखने दो। पिकिंग अप द फर्स्ट न्यूज़पेपर एंड रीडिंग आउट द हेडलाइन। वो पहला न्यूज़पेपर निकालती है फ्रंट पेज का और रीडिंग आउट द हेडलाइन, और हेडलाइंस को रीड करती हैं। क्या बोलती हैं वो? स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट डूइंग इनफ फॉर एडुकेशन से सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कह रही है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एडुकेशन के बारे में कुछ भी नहीं कर रही है, शिक्षा के बारे में कुछ भी नहीं कर रही है। मिसिज मानी पॉज एंड आस्क रोहन। मिसिज मानी थोड़ा शांत रहती हैं और पूछती हैं रोहन से, रोहन डू यू रिमेंबर व्हाट अ गवर्नमेंट इज फ्रॉम यू? रोहन डू यू रिमेंबर व्हाट अ गवर्नमेंट इज फ्रॉम योर लेसन्स लास्ट ईयर? तुमको याद है कि लास्ट ईयर, पिछले साल तुम्हारे लेसन में क्या गवर्नमेंट के बारे में क्या था? रोहन, यस माँ आई डू। हाँ मुझे पता है। अ गवर्नमेंट इज अ बॉडी दैट टेक्स केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट इज अ बॉडी दैट टेक्स केयर ऑफ द नीड्स। किसकी ज़रूरतें पूरी करती है? लोगों की ज़रूरतों को पूरा करती है। इट मेक्स लॉज एंड इंश्योर दैट पीपल फॉलो द रूल्स ऑफ द लैंड। और वो क्या निश्चित करती है? नियमों को बताती है और ये निश्चित करती है कि जो भी इनकी गवर्नमेंट क्या करती है? लॉ बनाती है और इंश्योर दैट पीपल फॉलो द रूल्स ऑफ द लैंड, और ये निश्चित करती है कि सभी लोग इसका पालन करें। वी ऑल्सो लर्न इन इंडिया वी हैव 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। और हमने ये भी पढ़ा है कि हमारे इंडिया में 3 लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के। द लोकल गवर्नमेंट लाइक द विलेज पंचायत एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दैट टेक केयर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लोकल एरिया। अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? तो उसने क्या बताया, उसने क्या पढ़ा था कि हमारे इंडिया में 3 लेवल होते हैं गवर्नमेंट के। कितने लेवल होते हैं? 3 लेवल। लोकल फर्स्ट क्या है? लोकल गवर्नमेंट लाइक दैट द विलेज पंचायत, जैसे कि गांव में होती है ग्राम पंचायत। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जैसे हमारे सिहोरा में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, नगर पालिका वगैरह। दैट टेक केयर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लोकल एरिया, और वो लोकल एरिया में लोकल गवर्नमेंट होती है। जैसे हमारे सिहोरा गाँव के एरिया में लोकल गवर्नमेंट, जबलपुर में द स्टेट गवर्नमेंट्स दैट एडमिनिस्टर द स्टेट ऑफ इंडिया। और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? पूरी स्टेट के बारे में, पूरी स्टेट का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर होती है। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दैट गवर्न्स द एंटायर कंट्री। और सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश को
पूरे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर रहती है, पूरे देश के बारे में उसको पूरी व्यवस्थाएं करनी होती हैं। ओके चिल्ड्रन, मिसिज मानी, वेरी गुड रोहन। India is a democracy. That means that we, the people of India, elect or choose our own government. India is a democracy. हमारी इंडिया में क्या है? डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी मीन्स, दिस मीन्स दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया इलेक्ट और चूज अवर गवर्नमेंट। इससे क्या होता है? डेमोक्रेसी में हम लोग, हमारे देश के लोग ही अपनी सरकार को चुनते हैं, गवर्नमेंट को चुनते हैं। दिस गवर्नमेंट इज चोजन अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। और ये गवर्नमेंट को हमको कितने सालों के लिए चुनते हैं? 5 साल के लिए चुनते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में हमारी क्या आती है? जैसे सिहोरा, जबलपुर, ये लोकल गवर्नमेंट में। और यदि हम उसको आगे जाएंगे तो स्टेट गवर्नमेंट, पूरे हमारे स्टेट, हमारे मध्य प्रदेश में की स्टेट, पूरे स्टेट में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेट गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट का लोकल एरिया होते हैं, सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट एडमिनिस्टर्स द एंटायर कंट्री। लोकल गवर्नमेंट में 2 पार्ट, पंचायत राज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। पंचायत राज गवर्नमेंट ऑफ रूरल एरिया। पंचायत राज कहाँ होता है? पंचायती राज ग्राम पंचायत वगैरह गांव में, रूरल यानी ग्रामीण एरिया में, ग्रामीण इलाके जहाँ पे गांव रहते हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गवर्नमेंट ऑफ अर्बन एरिया। अर्बन एरिया मीन्स जैसे नगर रहते हैं, जैसे सिहोरा, कटनी, मझौली, पानमरिया, हमारे इस एरिया में इस तरह से जो होते हैं गवर्नमेंट ऑफ अर्बन एरिया। every 5 year इलेक्शंस आर हेल्ड। हर 5 साल में क्या होते हैं? इलेक्शन होते हैं। इलेक्शंस आर हेल्ड। द पीपल ऑफ इंडिया कैन आइदर चूज अनदर गवर्नमेंट और दे कैन इलेक्ट द सेम गवर्नमेंट बैक टू पावर। हर 5 साल में इसमें हमारे इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, और हमारे देश के लोग जो हैं या तो दूसरी गवर्नमेंट को चुन सकते हैं या तो उसी गवर्नमेंट को सत्ता में ला सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। द मेन फंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, द मेन फंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आर टू मेक लॉज फॉर द कंट्री, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इट्स एनिमी। मेन फंक्शन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है? मेक लॉस फॉर द कंट्री, हमारे देश के लिए नियमों को बनाना। टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इट्स एनिमी, किससे बचाने के लिए? दुश्मनों से बचाने के लिए, मुसीबतों से बचाने के लिए नियम है। यदि कोई भी आदमी क्राइम करता है तो उसके लिए नियम है, उसको पनिशमेंट है। टू टेक केयर ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल and to ensure law and order it mentioned in the country. To take care of welfare of the people, और समाज में रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए, और ये निश्चित करने के लिए कि जो भी लोग इस देश के नागरिक हैं उनको मेंटेन करना है। लॉ एंड ऑर्डर इज मेंटेन्ड इन द कंट्री, पूरे देश में इसको मेंटेन करना, इसका पालन करना है। The main law-making body of the central government. The main law-making body of the central government is the parliament. Law-making body क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट कहलाती है। The main law making body of the central government is the parliament. पार्लियामेंट में ही पूरे नियमों को बनाया जाता है पूरे। The parliament consists of the president of India, the Lok Sabha and the Rajya Sabha.
पार्लियामेंट और क्या क्या बनाती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा एंड द राज्यसभा। तो अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, मेन लॉ मेकिंग बॉडी क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट क्या क्या बनाती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा एंड राज्यसभा। सो इन नेक्स्ट पीरियड I will explain. So you have to revise once more. If you are not able to understand, you can repeat, you can watch one time, two time video, and next, the Lok Sabha is the lower house of parliament. From here I will explain. So okay children.